Hello everyone, this is Naman Mittal welcoming you all back to another session of BuzzFeed Current Affairs. The date of the day is 13th of January 2021 and we shall be seeing all the articles which are important and relevant from the exam's perspective. So let us begin this particular session. And before beginning, to all the new learners who have got associated with us for the very first time, please allow me to introduce to them few of the benefits of an academy subscription first. If you take an academy subscription, you get multiple benefits like that of unlimited access to all the courses of the educators and the classes on the Unacademy's platform. Apart from that, all the classes on the Academy's platform are live, which gives you or provides you an opportunity to interact with the faculty on real-time manner. You also get live test and doubt clearing sessions at regular intervals to ensure करते हैं कि आपका regular basis पे assessment होता रहे and no gray area of yours is left to be touched upon during this preparation of yours of civil services examination. You can take an Academy subscription by downloading an Academy's learning app and installing it on your mobile phone. After that, you will be having or you will be getting two options of the subscription. First option would be plus subscription, and the second would be iconic. If you opt for the plus subscription, you will be getting multiple durations of the Unacademy subscription plan ranging from 1 month to up till 36 months. You can opt for any of the duration depending upon your own demand and requirement, but the recommended duration here would be of 1 year, which will cost you 49,500 rupees. You can avail extra 10% off by using my code NAMAN, NAMAN, and you can get flat 10% off on any of the duration that you select from this list. The final price of the annual subscription plan after application of my code will reduce to 44,550 rupees. If you go for the iconic subscription, then it is a bit expensive as it has certain additional benefits as well. Like personal coach you will be getting out here, you will be getting daily mains question answer practice and so on. इसीलिए जो उसकी 1 साल की प्राइस है दैट इज 69,500 rupees and again you can avail 10% off by using my code and the final price then would reduce to 62,550 rupees. अनअकैडमी कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस संडे को कमिंग संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट का एक क्वेस्ट होने वाला है and all those who are preparing for the prelims examination can participate here at free of cost to assess themselves at the pan India level. तो एक opportunity है आपके लिए to face the competition at the pan India level and also to win exciting prizes up to rank 150. Since only 6 months are remaining now for the prelims examination, so new batches have been launched repeatedly by the Unacademy, and now the upcoming batches would be launched on 18th of January, specifically for the prelims preparation. You can take an Academy subscription by using my code and enjoy the benefit of these courses. Let us directly come on to the first article of the day now. आज बेसिकली न्यूज़पेपर रिलेटिवली काफी ज्यादा ब्लैंक है. आज हमारे पास ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है डिस्कस करने के लिए. कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम डेफिनेटली अपनी पर्सपेक्टिव अपनी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर करने के लिए यूज करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ आर्टिकल्स हैं जो उतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है. The first article of the day which came in the Hindu newspaper's front page talks about the vaccine delivery. तो इंडिया में कैसे वैक्सीन डिलीवरी को रोल आउट किया जा रहा है इसको आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है बिकॉज by the May of 2021 you already would be having ample information. और अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में बहुत अनलाइकली है कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगी. तो हमने वैक्सीन में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स देखे थे. अप्रूवल मैन्युफैक्चरिंग वो अब हो चुका है. So that is our job there is already done. Now the 2 issues are remaining, that is vaccine delivery and the follow up mechanism. तो वैक्सीन डिलीवरी में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कैसे रोल आउट करना स्टार्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ हब्स एंड स्पोक मॉडल. हब यहाँ पे पुणे है एंड हैदराबाद है बिकॉज SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बेसिकली कोविशील्ड इक्विवेलेंट वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है इट इज लोकेटेड इन पुणे, इट इज बेस्ड इन पुणे. So the manufacturing will be done in Pune and from there we need to get the vaccines. तो इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं, डिलीवरी क्या आ रहे हैं और कॉस्ट क्या आ रहे हैं, सिक्योरिटी क्या आ रहा है. इन तीनों को हमें यहाँ पे इंश्योर करना है. कॉस्ट, डिलीवरी एंड सिक्योरिटी. डिलीवरी इंश्योर करी जा रही है फ्रॉम दिस हब टू द अदर 4 हब्स वेयर देयर इज द सेंट्रल डिपो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो 4 डिपोज हैं, एक करनाल में, एक मुंबई में, एक कोलकाता में और एक चेन्नई में. यहाँ पे वैक्सीन जाएंगी एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स टू अदर 41 इंपॉर्टेंट airports of our country and from there onwards to the state government depots.
and then finally to the public primary health care centers. तो ये पूरा रोल प्रोसेस है जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है. गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप अपने एंड पे लॉजिस्टिक्स को रेडी रखिए सो दैट वैक्सीन कैन बी डिलीवर्ड सिक्योरली एंड इन अ फास्ट और एक्सपीडिएंट मैनर. तो ये ओवरऑल प्रोसेस है. अब गवर्नमेंट ने ये बोला है एक और बात दैट देयर वुड नॉट बी एनी ऑप्शन with both, that is the state government and also with the individuals or the citizens who will be administered this vaccine to choose that which vaccine they want for their own inoculation. तो यहाँ पे सिटीजन और स्टेट गवर्नमेंट चूज नहीं कर सकता है कि उसको कौन सी वैक्सीन लेनी है फ्रॉम दी एज ऑफ नाउ 2 अप्रूव्ड वैक्सीन, दैट इज कोवैक्सीन और कोविशील्ड. तो कोविशील्ड के रिस्पेक्ट में खैर उतने ज्यादा कंसर्न्स नहीं है बिकॉज बाकी कंट्रीज में उसके ट्रायल प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं. वी हैव द डेटा फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड उसकी एफिकेसी भी हमारे सामने है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कोवैक्सीन which is being prepared by the Bharat Biotech and ICMR's नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, तो उसका एफिकेसी डेटा की कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में एज ऑफ नाउ नहीं है. ऑल्सो इट हैज नॉट कंप्लीटेड इट्स थर्ड फेज ट्रायल. तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं कराती है तो यहां से भी थोड़े बहुत एथिकल इश्यूज सामने आते हैं. बट दोज कैन बी काउंटर्ड अगेन बिकॉज ऑफ द मिसमैच इन द सप्लाई एंड डिमांड. तो क्योंकि सप्लाई डिमांड में एक्सेसिव मिसमैच है तो गवर्नमेंट का ये ऑप्शन कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाता है. तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे कोड करते हैं एग्जामिनेशन में इन योर ओन फेवर बाय सब्सटैंशिएटिंग योर पॉइंट दैट यू हैव मेंशन्ड इन द पेपर. तो आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया, स्पेशली व्हेन with respect to Covaxin, there is no absolute efficacy data in the public domain. Yet you are asking an individual to get inoculated by a vaccine which the efficacy data of which is not known yet. तो ये एक ethical dilemma है. फाइन. तो ये छोटा सा एक यहाँ पे बस पॉइंट है कि गवर्नमेंट कैसे वैक्सीन को रोल आउट कर रही है. इसके साथ अगर मैं वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करूं तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में प्लीज आप एक बात ध्यान में रखिए दैट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया is the world's largest vaccine manufacturer, which is an Indian private manufacturing pharmaceutical company. First point, and there are many countries, not only the countries which are located in our own neighborhood, but countries far away, even in Latin America, such as Brazil, are excessively reliant upon or dependent upon India to provide them the vaccines. तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में इंडिया कैन डू वंडर्स एंड थ्रू दिस वैक्सीन डिप्लोमेसी वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन आवर बायलैटरल रिलेशंस and our strategic position as well in the entire neighborhood, extended neighborhood, and also an opportunity to develop new relations with the Latin America, which in the later future are definitely gonna be beneficial for us when we will be rolling out NEMM और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो हमने कुछ टाइम पहले देखा था. ठीक है, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी को आप इस तरीके से थोड़ा सा कोट कर सकते हैं. ओके, इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ आपको डिटेल्स में जरूरत नहीं है. सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है प्रॉपर मैनर में. जैसे हम इलेक्टोरल बैलेट्स को सिक्योरली लोकेट करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उस हिसाब से ही वैक्सीन को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है. ओके, तो सेकंड आर्टिकल टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. देखिए, फार्म एक्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. ऑल द 3 फार्म एक्ट्स मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस करा है. जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं मेरा डिस्कशन देखा है, आप YouTube पे जाके देख लीजिए द एनालिसिस ऑफ द फार्म एक्ट्स. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कैसे इंटरवीन करा एंड हाउ आर वी गोना यूज इट. फाइन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें सिर्फ एक एग्जांपल पिक करना है यहाँ से फॉर द जुडिशियल ओवररीच. And I am intentionally using the word here, judicial overreach and not activism. इसके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है कि जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सारी चीजें क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग ऑफ अ जुडिशरी एंड ऑल दीज थिंग्स. So there were basically 2 schools of thought, positivist jurisdiction and the sociologist jurisprudence. ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे जिनके थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच डिराइव होता है. राइट, एक्टिविज्म और ओवररीच में बहुत ही फाइन बाउंड्री होती है, फाइन डिफरेंस होता है. एंड दैट फाइन डिफरेंस आउट हियर इज दैट व्हेन द स्टेप टेकन बाय द जुडिशरी, बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया,
इफ इन एक्सेसिव मैनर, ये रिलेटिव टर्म्स में देखा जाता है, इसका कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि आपके पास ओवर रीच की कोई अलग डेफिनेशन हो और एक्टिविज्म की आपके पास कोई अलग डेफिनेशन हो. दीज आर रिलेटिव टर्म्स. when the overreach or activism of judiciary is in excessive term, we call it as overreach, otherwise we call it एक्टिविज्म. तो ओवररीच के केस में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस होती है कि उनको एग्जांपल्स नहीं मिलते हैं, और एक्टिविज्म पे हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स होते हैं हमेशा. तो ओवररीच के केस में यू प्लीज हैव ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स कि एक एग्जांपल हमें रिसेंट में मिला था ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कर रहा था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बाय आस्किंग दिस स्टेट गवर्नमेंट दैट explain us the situation and explain us why the president rule should not be invoked in the Andhra Pradesh state. तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था that it is an overreach. तो एक एग्जांपल हमारे पास था, और दिस इज द सेकंड एग्जांपल. यहाँ पे हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 3 फार्म एक्ट्स. सो इज दिस overreach? No, this per se is not an overreach, but please try to understand one thing. When the Indian judiciary puts a stay on the implementation of the act without delving into the constitutionality of those acts, then definitely it's a problem and it is then called as an overreach. ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जुडिशरी ने एक लेजिस्लेटिव टूल को, एक स्टैच्यू को पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, उसको स्टे कर दिया है, उसके इंप्लीमेंटेशन को स्टे कर दिया है विदाउट डेल्विंग इनटू इट फर्दर टू डिसाइड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दैट ऑफ दोज एक्ट्स. तो यहां पे जो स्टे लगाया गया है उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लीगल रीजनिंग नहीं प्रोवाइड करी है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको बैलेंस आउट नहीं करा है, एंड विदाउट having balanced out with the constitution or without finding out any kind of legality or legal issue in these formats, Supreme Court has stayed the implementation. And what it says that it has stayed the implementation, just let me tell you that exact word. It has stayed the implementation so that it may assuage the hurt फीलिंग्स ऑफ द फार्मर्स. तो सेंटिमेंटल बेसिस पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट करा है फॉर द फर्स्ट टाइम. इसको थोड़ा सा और अगर आप एनालाइज करेंगे तो जुडिशियल ओवररीच आपको क्लियर होगा. एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड इन इंडिया दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट विदाउट गिविंग लीगल रीजंस और विदाउट चेकिंग इट्स constitutionality. First point. Second, there are many impending matters before the Supreme Court which have been filed through several petitions for at least now 2 to 3 years. कौन-कौन से matters हैं वो? इंटरनेट राइट्स है जम्मू एंड कश्मीर का, 2019 से ये पेंडिंग है. फर्स्ट पॉइंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर पेटिशंस फाइल्ड है सिंस अगेन 2019. Okay, apart from this there are matters related to electoral bonds जो 2018 से petitions filed है. Now these matters have not been discussed by the Supreme Court, but this particular issue, a protest which is purely a political issue, has been decided by Supreme Court. और यहाँ पे Supreme Court ने क्या बोला है that we will form a committee, an expert committee, on the recommendations of which we will further decide the course of action. ये प्लीज आप यहाँ पे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि ये कमेटी का क्या रैशनल है, नॉट क्लियर. कमेटी को किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, मेंबर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे रखा गया है, वी डू नॉट नो. It has not been made transparent. Point number 1. Point number 2, what Supreme Court is gonna do with the recommendations? Is Supreme Court gonna overtake the Parliament's functioning or the legislative action? Is Supreme Court gonna take over the legislative functioning and decide upon the fate of the farm acts without deciding the constitutionality and legal reasoning of the same?
तो ये चीजें जो हैं ये बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है, जिसके कारण इसको सीवियरली क्रिटिसाइज आगे भी किया जाएगा और एज ऑफ नाउ भी किया जा रहा है। दो एडिटोरियल आ जाए हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस में और एक द हिंदू में, जिसको आप रीड करेंगे फॉर श्योर, दोनों को आपको रीड करना है, स्पेशली दी हाईलाइटेड पार्ट, जिसमें आपको यही क्रक्स सामने आएगा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा है। स्पेशली दी इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल, इट इज वर्थ रीडिंग। So the action of Supreme Court basically is like blurring the boundaries of Parliament's power to legislate and the court's power of judicial review. दोनों powers यहाँ पे blur हो जा रही हैं. Fine. And this is the first time that the apex court has stayed a law passed by the Parliament without sparing even a single session hearing to examine its constitutionality. So the criteria for the selection of experts of the expert committee is not known, and also what happens after this committee submits the report. Is Supreme Court gonna take over the entire case or the entire thing? ये दोनों यहाँ पे major issues बन के सामने आते हैं। तो बस आपको यहाँ से यही चीजें पिक करनी है। प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में आपको इसकी एप्लीकेशन पे फोकस करना है, नॉट ऑन दी टॉपिक इटसेल्फ, बिकॉज टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। Okay, the next editorial or the lead article of the Hindu today is very important. It talks about the SARC and it also touches upon various points which we already have discussed previously. तो यहाँ पे इंडिया का रोल एंड सार्क, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड सार्क, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सबको डिस्कस किया गया है। तो दिस इज द piece of writing जो आपको हेल्प करेगी to collect all the points that we already have discussed previously. थोड़ा सी मैं आपको ब्रीफिंग देता हूं यहाँ पे, और जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं सार्क की बात करूं तो for the 6th consecutive year in 2020 SARC meeting has not taken place and India has not participated in it. SARC was formed in 1985. ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपके साथ SARC को कंप्लीटली डील कर चुका हूँ, सिर्फ एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, और फिर इसको मैं लिंक करूंगा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ, चाइना के साथ, एंड व्हाट इज द फ्यूचर फेट ऑफ SARC विद एंड विदाउट इंडिया। थोड़ा सा यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो SARC का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1985 में, तो इंडिया वाज नॉट वेरी मच विलिंग टू जॉइन इट बिकॉज इट फियर्ड दैट इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल नेशंस अगेंस्ट इंडिया। सो it thought that this grouping will act against India, so it was not very much willing to join it. लेकिन इंडिया ने उसको ज्वाइन करा, उसको लीड किया, एंड टिल 2014 इंडिया वाज अ लीडर ऑफ SARC। लेकिन सार्क में कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिली, और 2014 से वी हैव अबैंडन्ड सार्क बाय सेइंग दैट वी आर नॉट गोना डील विद पाकिस्तान अंटिल एंड अनलेस इट शेड्स और अबैंडन्स द वायलेंस और टेररिज्म। तो टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, ये एक बेसिक स्टेटमेंट है जो हमेशा न्यूज में चला है। लेकिन यहाँ पे आप प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए that if you do not want to engage with Pakistan in SARC, then how come you are engaging with Pakistan in SCO? SCO की मीटिंग हुई, वहां पे पाकिस्तान के काउंटर पार्ट भी मेंशन अवेलेबल प्रेजेंट थे, बट इंडिया ने वहां पे एंगेज करा। एंड अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, सो चाइना हैज बिकम अ बिगर एडवर्सरी ऑफ इंडिया, even bigger than the Pakistan. Yet you are engaging with China at multiple platforms, including G20, SCO, RIC, that is Russia, India, China trilateral grouping. So this statement of the government that we are not going to engage with Pakistan because it involves itself or it flourishes terrorism, cross-border terrorism, is basically not based on reasoning. ये आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। अगर ये रीजनिंग पे बेस्ड होता या हम यहाँ पे एडमिट होते, तो हम एससीओ में पाकिस्तान के साथ डील नहीं करते, हम एससीओ में पाकिस्तान के साथ एंगेज नहीं करते, और अगर ये ट्रू होता तो हमने शायद चाइना को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी होती और हमने चाइना को भी अबैंडन कर दिया होता, चाइना को भी हमने डील नहीं करा होता इन द प्लेटफॉर्म्स लाइक G20, SCO एंड RIC, बट वी आर डूइंग सो।
So why you are basically abandoning a platform which is truly dependent upon the India's leadership and is very much crucial for the India's neighborhood first policy, which forms to be the most important part of the neighborhood first policy of the India's foreign policy. तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी and we have abandoned this grouping, we have abandoned this regional grouping SARC just because of the presence of Pakistan as we say, लेकिन ये ट्रू नहीं है। इसको आपको काउंटर करने के लिए एग्जांपल्स मिलते हैं जो आप यूज करेंगे। सार्क को अबैंडन करना हमारे लिए और क्या बेसिक रीजंस हैं कि हम सार्क को फंक्शनिंग नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। तो एक तो असिमेट्री का हमने रीजन देखा था that the huge burden is on the India's shoulder to lead SARC and there is no one else other than India in the entire grouping to share the burden of leadership. So there is only one leader, that is India. 60% of the population in the entire SARC is of India and also 60% of the GDP is contributed by India in the entire SARC grouping. Apart from that, geographical asymmetry है यहाँ पे। Geographical asymmetry की अगर मैं बात करूं, so it means that apart from India, there is only one country which shares border with another country, that is Afghanistan. इंडिया और अफगानिस्तान के अलावा ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो सार्क मेंबर्स में आपस में बॉर्डर शेयर करते हो। तो ज्योग्राफिकल एसिमेट्री यहाँ पे भी सामने आती है that इंडिया पे सारी कंट्रीज एक्सेसिवली डिपेंडेंट है फॉर ट्रांजिट, फॉर ट्रेड, फॉर कनेक्टिविटी एंड फॉर सो ऑन। लेकिन यहीं से सार्क की इंपॉर्टेंस भी आपको समझनी चाहिए और यहां से आपको इंडिया की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है और अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को थ्रू सार्क इट कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एंड मच रिक्वायर्ड पुश एज वेल। यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो अभी वी आर losing to China. How we are losing to China? श्रीलंका और नेपाल, ये दो पॉइंट आप बताएंगे। They have become the new linchpin of China. कैसे? श्रीलंका की almost 13% of the foreign debt is owed by China. चाइना के यहाँ पे कितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं? इंडिया के यहाँ पे क्या स्टेक्स हैं? एक 13th अमेंडमेंट है जिसके अगेंस्ट एयर चल रही है इन श्रीलंका दैट the new political establishment of Sri Lanka is gonna do away with it. इसके अलावा ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है, इसके भी अगेंस्ट वहां पे एयर ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी है और कैसे चाइना वहां पे इन्फ्लुएंस कर रहा है डिसीजंस को, ये हमने देखा। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल किसकी बात कर रहा है? अब इक्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप की। मैंने एक आर्टिकल आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने सिर्फ एक वर्ड पे फोकस किया था that now whenever we will talk about India and Nepal, we will focus or emphasize upon this keyword, that is equality based relationship, the new demand of Nepal, right? तो नेपाल की जो नई डिमांड है that again has a backing of China because the negotiating power of the countries in our neighborhood has significantly increased because of the inroads made by China in our own neighborhood. You will be surprised to know that in the entire SARC and among all the members of SARC, there are only two countries who are not part of BRI. First is India and second is Bhutan. Rest all the members in our own neighborhood are part of BRI project of China. फाइन। तो बांग्लादेश चाइना के रिलेशन हमने डिस्कस करे थे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑन मोर देन 90% गुड्स अलाउ कर दिया है चाइना ने। नेपाल में हिमालयन ट्रांस नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है, अफगानिस्तान को वो इनवाइट कर रहा है टू ज्वाइन सीपैक। पाकिस्तान की तो खैर बात करना ही बेकार है बिकॉज पाकिस्तान चाइना के बीच में सीपैक कॉरिडोर एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, राइट। तो कौन सी कंट्री यहाँ पे बसती है विथ विच इंडिया हैज ग्रेटर इन्फ्लुएंस अपार्ट फ्रॉम भूटान, राइट। सो द पोजिशन दैट इज बीइंग विकेटेड बाय India in the neighborhood region is aggressively occupied by China. ये यहाँ पे भी मेंशन्ड है और ये चीजें हम बहुत टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में पॉइंट डिस्कस करा कि हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेंगे until and unless पाकिस्तान शेड्स टेररिज्म और वायलेंस, ये अब
पॉइंट स्टैंड नहीं करता है, बिकॉज आपने देखा कि इससे हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस भी अफेक्ट हो रहे हैं, एंड इवन द इंटरनल सिक्योरिटी कंडीशन ऑफ इंडिया इज गेटिंग अग्रवेटेड. हाउ? बिकॉज यू सी militancy in Jammu and Kashmir, it has been significantly increased since 2014 onwards. जब से हमने पाकिस्तान को अबैंडन किया है, साइडलाइन करने की कोशिश करी है, तो यू विल हैव टू इंटरैक्ट विद दीज कंट्रीज नो मैटर और irrespective of the fact that how these countries are involved into extremist kind of activities. You already have legitimized Taliban, then what is the issue with Pakistan? Recall the Vajpayee policy. Vajpayee policy ने हाईएस्ट लेवल के कंसल्टेशंस, डायलॉग प्रोसेस ओपन करे थे, इनिशिएट करे थे, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी एंजॉयड वेरी गुड रिलेशंस नॉट ओनली इन आवर ओन नेबरहुड बट वी आल्सो वर एबल टू सप्रेस द सिचुएशन और द इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स इन आवर कंट्री. मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी बाय 2010 and 11 मेजरली बिकॉज ऑफ द हाई लेवल कंसल्टेशंस एंड डायलॉग्स इनिशिएटेड बाय द वाजपेयी पॉलिसी. तो ये जो पॉलिसी है, इसको मैं यहाँ पे कोई सिर्फ पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ ऑफ एंगेजमेंट एंड ऑफ डिसएंगेजमेंट. So when you engage, only then you have the option of negotiation, and when you have the option of negotiation, then you have the option to turn or incline the solution towards your own interest. If you disengage, then you do not have a solution per se. Getting my point? तो बहुत जरूरी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ जरूरी नहीं है, चाइना के साथ भी जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द सीपेक, क्योंकि यहाँ पे अब इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जरूरी बन जाता है. सार्क में इंडिया को क्या लीडरशिप रोल प्ले करना चाहिए? कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द फर्स्ट मेजर रोल इज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी. सार्क रीजन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एक तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक टाइज है, हिस्टोरिक शेयर्ड लिंग्विस्टिक कल्चर है ओवरऑल साउथ एशियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर इंडिया टू कलेक्टिवली एक्ट और टू प्रोएक्टिवली एंगेज ऑल द कंट्रीज ऑन a common point or for a common agenda. So transnational issues we have many, including climate change, cyber terrorism. We have many issues, and apart from that, the SAARC region showcases least intra-regional trade as well. Only about 5%. एशियान में इंट्रा रीजनल ट्रेड कितना है? अराउंड 26%. मर्कसुर में इंट्रा रीजनल ट्रेड कितना है? अराउंड 12%. लेकिन सार्क में कितना है? ओनली 5%. एंड इट बिकम्स मोर ग्रेव व्हेन यू सी दैट द इंट्रा रीजनल ट्रेड इज लो एट 5% when the SAARC was established 36 years ago. तब से लेकर आज तक आप कुछ भी यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाए हो. साफ्टा को आपने इंप्लीमेंट किया in 2006 around, but the impact of the same is almost negligible or minimal. Getting my point? तो जब ये कोई डिबेट आपसे पूछे कि सार्क वर्सेस बिम्स्टेक, सो बोथ आर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये समझना और ये समझाना कि दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस क्या है. हमें अपने नेबरहुड के लिए सार्क चाहिए और हमें अपने डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बिम्स्टेक चाहिए. ऑल्दो बिम्स्टेक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन उससे हम कनेक्ट करते हैं विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड द एशियन कंट्रीज. लेकिन सार्क की इंपॉर्टेंस अपने आप में अलग है. इट हेल्प्स अस टू have a collective command on the neighborhood or on the Indian subcontinent, which is very important for India. Otherwise, this position would be captured by China. Or already all major countries of the SAARC are members of China's BRI project. So the time is not too far when China would be invited by these small groupings or small nations by sidelining India. So that would be the major defeat, and that would be the final nail in the coffin of neighborhood first policy. That would be the dead letter for the neighborhood first policy. तो इस आर्टिकल को एक बार आप रीड जरूर करिएगा, हाइलाइटेड पॉइंट्स बस रीड करिएगा, ज्यादा नहीं. जो ग्रीन है बस अगर वो भी रीड कर लेंगे तो दैट वुड बी मोर देन sufficient. SAARC, BIMSTEC, neighborhood first policy, role of China, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंटरलिंक्ड है. सबको प्लीज थोड़ा सा समझते हुए चलिए. डाउट है आपको तो मुझसे पूछिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो मेंस में पूछा जा सकता है कभी भी.
गेटिंग माय पॉइंट। और आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो इंडिया के लीडरशिप रोल में कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बूस्ट देना सेकेंड है, एंड थर्ड दैट अपॉर्चुनिटी इंडिया हैज इज द वैक्सीन डिप्लोमेसी आउट हियर। इंडिया यहाँ पे वैक्सीन सिर्फ प्रोवाइड नहीं करेगा बल्कि उसकी डिलीवरी में भी हेल्प करेगा in its neighborhood, because our neighborhood is not very much efficient to roll out the vaccines in large scales in their own countries. Getting my point? अच्छा, एक और एग्जांपल जो यहाँ पे अच्छा मेंशन्ड है, दिस पॉइंट दैट आई हैव हाइलाइटेड, इट टॉक्स अबाउट इंक्रीजिंग टूरिज्म पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए। कैसे करोगे आप? ऑन द लाइंस ऑफ ईस्ट अफ्रीका सिंगल जॉइंट वीजा कॉन्सेप्ट। ईस्ट अफ्रीका में कंट्रीज ने एक जॉइंट वीजा रेजिम एस्टैब्लिश करी है, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस इन द ईस्ट अफ्रीका टू ट्रैवल इन द एंटायर रीजन। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम भी अप्लाई कर सकते हैं इन द साउथ एशियन रीजन, लेकिन थोड़े से सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे हमारे साथ बिकॉज of the radicalization and because of the adversaries that we have, especially Pakistan, China, Bangladesh में radicalization के issues हैं, अफगानिस्तान में instability का issue है, but we can work upon it। इसी तरीके से MVA काफी टाइम से पेंडिंग है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो 2015 में हमने रोल आउट करा था, लेकिन इसे भी हम इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं कर पाए। तो इसमें भी इंडिया एक लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक और चीज जो इंडिया के पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन डिप्लोमेसी, द सेकंड अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया हैज इज दैट इट हैज नाउ बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो हम ट्रेडिशनल टाइज को रिविटलाइज कर सकते हैं बाय रेजिंग देयर इश्यूज ऑन द इंटरनेशनल फोरम प्लेटफॉर्म्स बेसिकली, राइट। तो इससे हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं कि अपने नेबरहुड में दैट वी स्टिल आर देयर फॉर दीज स्मॉलर कंट्रीज। तो यहाँ पे की पॉइंट्स जो आपको बताने हैं दैट हाउ इंडिया कैन एक्ट, तो एक तो कनेक्टिविटी हो गई, दूसरा पीपल टू पीपल टाइज हो गया जिसमें आप टूरिज्म वाला एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज हो गई एक इंटरनेशनल लेवल पे जॉइंट वेंचर क्रिएट करना, जो हमने पहले भी डिस्कस करा है कि इंडिया अपने साथ लाइक माइंडेड कंट्रीज को इट कैन ब्रिंग टुगेदर, लाइक द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएस, जापान। ये कंट्रीज को इंडिया कैन ब्रिंग टुगेदर, एक ग्रुपिंग बना सकता है इंडिया, एंड वी कैन incentivize or we can nudge these countries, this grouping, to invest in our neighborhood, not only in India but in our neighborhood। नेपाल में टुगेदर अगर इन्वेस्ट करेंगी यूएस की कंपनीज, जापान की कंपनीज, तो यहाँ पे इंडिया और नेपाल का एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है दैट द फेस शुड बी इंडिया। ऐसा ना हो कि इंडिया ने यूएस को आगे करा और यूएस फिर सारा क्रेडिट ले गया, देन India will be having no option। The face should be India, the negotiating party should be India, but it should be backed by like-minded countries like Japan, US, Australia, France, and so on, because we have developed very good relations with these countries, especially in this last 4 to 5 years। तो इंडिया इनको यूज कर सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडिया क्या कर सकता है? और इसके अलावा वैक्सीन डिप्लोमेसी हो गई और यूएनएससी हो गया, ठीक है। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे सार्क के रिगार्डिंग कुछ भी, और इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी ऑन सार्क, बिम्स्टेक, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एनीथिंग, ओके आगे बढ़े, बिकॉज आज का यही एक मेजर आर्टिकल था, इसलिए आई वांटेड टू गिव सम टाइम ऑन टू दिस, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर सकें। ओके फिर एक और प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि बायलैटरल रिलेशंस की तरफ कंट्रीज मूव कर रही है। दे नो लॉन्गर बिलीव इन द रीजनल कोऑपरेशंस बिकॉज दे थिंक दैट रीजनल कोऑपरेशंस आर ऑफन कन्फ्रंट विद द डेडलॉक्स। तो दे आर मूविंग नाउ टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, इनवर्ड, दे हैव बिकम मोर इनवर्ड। तो आप इनवर्ड भी कितना इनवर्ड बनोगे, दिस इज द पॉइंट मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, एंड अ वेरी गुड कीवर्ड दैट इज गोल्डीलॉक्स जोन्स, जो हम स्पेस में यूज करते हैं। एक ऐसा एरिया वेयर लाइफ कैन बी फाउंड,
राइट, लाइक अर्थ है, अर्थ का एक गोल्डी लॉक जोन में अर्थ आती है, एक ऐसा एरिया जहां पे लाइफ या और लाइफ कैन बी बेसिकली फाउंड, राइट। तो गोल्डीलॉक्स जोन इन टर्म्स ऑफ रीजनल कोऑपरेशन और प्रोटेक्शनिज्म, इसको यूज किया है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, कि अगर एक साइड है दैट यू बिकम आउटवर्ड एंड द सेकेंड साइड इज दैट यू बिकम इनवर्ड, बट बीच में एक कहीं पे एक एरिया आता है दैट इज गोल्डीलॉक, जहां पे आप सेफली अपने आप को प्लेस कर सकते हो, ना आपने प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करा है, ना आप बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हो। तो इंडिया शुड फाइंड दैट गोल्डीलॉक जोन एंड अकॉर्डिंगली एक्ट, बिकॉज आरसीईपी से भी हमने विड्रॉ कर लिया है। द ओनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज ऑफ नाउ इन द साउथ एशियन रीजन इज साफ्टा। साफ्टा के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रेड एंड कॉमर्स, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल टाइप्स को इनिशिएट करें एंड लीडरशिप रोल यहाँ पे प्ले करें। फाइन, ओके। यूएनएससी मेंबरशिप इंडिया ने अज्यूम कर ली है नॉन परमानेंट मेंबर की। तो इंडिया ने यहाँ पे कुछ इश्यूज रेज करे हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि इंडिया के दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, एक नॉर्म है और एक कॉम्बैटिंग टेररिज्म है। तो इंडिया ने यही इश्यूज यहाँ पे रेज करे हैं। टेररिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है सीसीआईटी, दैट इज सीसीआईटी 1996 का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन टू काउंटर इंटरनेशनल टेररिज्म, जहां पे इंडिया एक यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा है ऑफ द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म टू बी अडॉप्टेड बाय ऑल द नेशंस और टू बी अडॉप्टेड बाय द यूएन एंड इट्स मेंबर स्टेट्स, ताकि टेररिज्म से डील करना इजी हो जाए। तो इंडिया ने यहाँ पे वही बात करी है दैट द डिफरेंस शुड नॉट बी मेड बिटवीन गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। टेररिज्म इज टेररिज्म, इट कैन नॉट बी बैड और गुड। ये इंडिया का एक पॉइंट है। तो इस तरीके से जो भी इंडिया अब स्टेटमेंट्स देता है एट यूएनएससी, उसको थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ये आर्टिकल बस अब हमें यही सिखाता है कि हमें बस इन न्यूज को एक बार गो थ्रू करना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि इंडिया क्या एक्शंस ले रहा है व्हाइल बीइंग दी नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है। देन इंडिया ने यहाँ पे एक और पॉइंट रेज करा है कि वीटो पावर का मिस यूज होना बंद होना चाहिए। द मिस यूज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स एंड होल्ड्स put by the permanent members, especially while designating an individual or an entity as terrorist। तो यहाँ पे इंडिया ने रिफर किया है मसूद अजहर को, जो इंडिया काफी टाइम से जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा था अंडर द यूएनएससी 1267 कमिटी, बट इट वाज रिपीटेडली ब्लॉक्ड बाय चाइना यूजिंग इट्स वीटो पावर। तो दिस मिसयूज ऑफ वीटो पावर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा इंडिया का यहाँ पे कहना है। राइट। फिर इसने पाकिस्तान को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है दैट देयर आर फ्यू कंट्रीज हु प्रोवाइड सेफ हेवन्स टू दी अंडरवर्ल्ड पीपल who also are included or involved in the organized criminal networks and even in the terrorism. Here India is indicating दाऊद इब्राहिम, जो पाकिस्तान में 5-स्टार ट्रीटमेंट के साथ रह रहा है। तो पाकिस्तान कैसे सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है, ये यहाँ पे इंडिया ने रेज किए कंसर्न। एंड इंडिया हैज सपोर्टेड एफएटीएफ इन इट्स efforts to combat terror financing, money laundering and protection of international financial institutions। इस तरीके से जब भी कोई ट्रैक इंपॉर्टेंट हमें कुछ डेवलपमेंट होगा तो हम उसको इंक्लूड करते जाएंगे कि इंडिया ने क्या रोल प्ले किया while being the नॉन परमानेंट मेंबर। फाइन। ये लास्ट आर्टिकल आपको एक डेटा प्रोवाइड करता है और छोटे से फैक्ट्स हैं जो आप अगेन एग्जांपल की तरह यूज करेंगे। एक आप इसको एसए में यूज कर सकते हैं, दूसरा आप इसको GS2 GS4 में यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द माइग्रेंट्स। तो यूएन का एक इंडेक्स है, प्रीलिम्स के लिए इंडेक्स का नाम याद रख लीजिए, द माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स, मिपेक्स। प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकता है, मिपेक्स इज पब्लिश्ड बाय, तो इट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। फाइन। मेंस में आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूएन को कोट करते हुए डेटा बताएंगे। वर्ल्ड में कितने माइग्रेंट्स हैं? 3.5% वर्ल्ड में माइग्रेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द यूएन। इस तरीके से हमें बात करनी है। ठीक है। इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया के बारे में यहाँ पे क्या कमेंट्री की गई है? तो ऑन इंडिया इट हैज बीन सेड बाय द यूएन मिपेक्स रिपोर्ट दैट इंडिया रैंक्स लोएस्ट among all the 52 nations जहां पे माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, जहां पे माइग्रेंट्स हैं, in protecting or giving protection
टू माइग्रेंट्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा है अगेंस्ट माइग्रेंट्स, ऐसा यूएन की रिपोर्ट बोलती है। सेकेंड, जो सबसे पुअरली जहां पे हम प्लेस हुए हैं, इन प्रोवाइडिंग और इन मेकिंग आर हेल्थ पॉलिसीज इंक्लूसिव। So it says that we have not extended health care and related benefits or facilities to the migrant population. तो यहाँ पे ये दो जगह पे इंडिया फेल होता है अकॉर्डिंग टू द मिपेक्स यूएन रिपोर्ट। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जहां पे इंडिया ने थोड़ा सा कम एफर्ट्स दिए हैं। तो ये एक डायग्राम को आप गो थ्रू करेंगे, इसको मैं समझा देता हूं कि आप उसको रीड कैसे करेंगे। डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूं मैं। जब आप डाउनलोड करें तो इस डायग्राम को एक बार बस गो थ्रू कर लेना। ओके, देखिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 100, 0 बीइंग वर्स्ट एंड 100 बीइंग द बेस्ट। और ये सारे इसमें फैक्टर्स हैं। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जैसे है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंडिया रैंक्स 0 बिकॉज यहां पे बिल्कुल भी आगे आउटवर्ड प्रोजेक्शन नहीं है। फैमिली रीयूनियन में इंडिया फेयर्स द बेस्ट। तो इंडिया ये इंश्योर करता है कि जो भी इंडिया में माइग्रेंट्स हैं वो यूनाइटेड रहें, हम उन्हें सेपरेट नहीं होने देते हैं। जैसे भी बांग्लादेश में हमने प्रॉब्लम देखी भाषण 4 आइलैंड की, तो वी नेवर नो, वी डू नॉट नो एज ऑफ नाउ कि क्या उनको फोर्सफुली सेंड किया जा रहा है, क्या फैमिली वहां पे यूनाइटेड है। देयर इज नो एक्चुअल डेटा ऑन दैट। तो इंडिया इस मामले में इंश्योर करता है कि माइग्रेंट्स भले इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके अगेंस्ट, हम हेल्थ फैसिलिटीज एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, बट वी एंश्योर कि दे आर यूनाइटेड, हम सेपरेट नहीं करते हैं फैमिलीज को, उनका और इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा इंक्रीज नहीं करता है। हेल्थ में देखिए ऑलमोस्ट 0 है, राइट। लेबर मार्केट की क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 0। एजुकेशन हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही मिनिमल है जो हम माइग्रेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन में अगेन इट इज ऑलमोस्ट 0। एंड एक्सेस टू नेशनलिटी, दैट इज क्या हम सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं माइग्रेंट्स को, तो हम सिटीजनशिप भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं माइग्रेंट्स को। तो इन सारे फैक्टर्स में हम काफी पुअर हैं। द ओनली फैक्टर वेयर वी फेयर और वेयर वी आर प्लेस्ड or we have got the good ranking is the family reunion। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो आप यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप मिपेक्स याद रखिए कि हु रिलीजेस द मिपेक्स, सो इट इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। किसी को कोई भी डाउट है आज से किसी भी आर्टिकल में, आप प्लीज मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, ये वाला डायग्राम, राइट। डेटा पॉइंट है, आज द हिंदू में आया था। एंड एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हो सकता है कि मैं कल से मस्ट रीड करंट अफेयर्स यूट्यूब पे शिफ्ट कर दूं। सो आई वोंट बी टेकिंग द मस्ट रीड करंट अफेयर्स ऑन अनअकैडमीज स्पेशल क्लासेस, आई विल बी टेकिंग इट ऑन द यूट्यूब फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। फाइन, तो मैं पहले ही लिंक आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे कि क्लास कहां पे हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल टेक प्लेस ऑन दी YouTube from tomorrow onwards। डाउट है किसी को तो आप पूछिए, अदरवाइज विल कॉल इट। Okay, thank you all for patient listening. Have a great day.